Hello, everyone. We welcome you all to our weekly podcast, The Ellipsis Creations Show. We are Ellipsis Creations, India's first led by authors publication house, and a spoken word platform by the name Khushhali. So, today in our panel of episode 1, we have Simran Munot, who is a writer, a designer, and the one who organizes the complete Khushhali in Mumbai. On the other side, we have Anamika Shukla, who is the editor and the host for the Khushhali spoken word event. So today we will discuss about spoken word platforms, responsibility check. So to start with today's episode, let us talk a little bit about our spoken word platform. What is Khushhali and what kind of a platform is it and how is it different from other platforms? And then we'll dig deep into the topic. So let's start with the one who organizes Khushhali in Mumbai, Simran. What his perspective regarding Khushhali as a spoken word platform? Khushhali is a traditional open mic. The open mic concept which we have currently is paid and the people do not get a correct and a good platform to come up with their ideas, what they have written. So Khushhali and somewhere the traditional open mic concept has been lost. So we are trying to bring that concept back again in Khushhali, wherein we support other artists, not only the one who are on a great level of writing, but also the new ones who have just started the writing journey and looking out for a mentorship or guidance. So we provide guidance also there. Khushhali is about traditional open mic. So, Anamika, as our episode is more about a responsibility check, so from the perspective of being a host of a spoken word platform that is all about giving opportunities and stuff, what, according to you, is the responsibility of a host while the event is going on? Could you repeat the last statement again? I could not hear you. So, according to you, what is the responsibility of a host in the whole open mic scenario or the whole spoken word beat any event scenario while the event is going on? Okay. So, being a host, primarily, I think the very most important thing that needs to be taken into consideration by the host is कि आप उनको हमेशा मोटिवेट करें. For example, there are many people. अब open mics है तो people are there to test their content. So I need to be, and the host needs to be at the very forefront to take the artist into consideration of their content, of what are they performing. And if as an artist they fail to perform well, or they just fumble throughout the whole performance, so as a host I think we need to be very supportive during that point in time. We need to keep them motivated all along the process. So this is a very primary and very most important thing. Now, second, being a host, I think the responsibility that comes into our basket is check whether the content is legit or not. Content legit as in whether it is hurting someone's feelings or religion, whether the content is trying to hit someone on a very personal note. So that also needs to be taken into consideration. And according to me, on a very personal note, according to me, it should be given a proper feedback there and there itself. A proper feedback needs to be given according to the host. Like from a perspective of a performer myself, being a writer myself, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि if someone comes to me in an event के दौरान ही and tells me कि this content is not legit, do not perform this, or this is something that will not be accepted over here. So पहला सवाल कहीं ना कहीं मेरा वो नहीं होगा कि I came traveling so far आपके यहाँ perform करने के लिए, so maybe you could have told me beforehand what are the rules, what are not the rules, और क्या perform करना है क्या नहीं करना है. Now suddenly आप पहले कह रहे हो कि open mic है where you can perform anything that's in your mind, और उसके बाद now you're telling me कि ये legit नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, you can't do. And especially platforms ऐसे assume करो, like if I'm coming out like even Ellipsis Creations and Khushhali post the videos, assumingly I perform and I performed very well and I get very good applause from the audience as well. तो कहीं ना कहीं I'm expecting that my video will be recorded and will be uploaded
कंसीडरिंग द फैक्ट कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी, एंड देन सडनली समवन टेल्स मी कि नहीं आपका कंटेंट लाइक कोई भी ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट अगर बताता है और वो फिर आई कैन से ना कि मुझे पहले नहीं बताया था, नाउ यू आर मेकिंग श्योर मैं इतने दूर ट्रैवल किया, मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है, मुझे ये भी बोला जा रहा है कंटेंट सही नहीं है, सो मैं हर्ट नहीं होऊंगा क्या? तो यहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइजर टू सिमरन, इट्स फॉर यू द क्वेश्चन, एंड एज अ होस्ट तुरंत इवेंट के दौरान संभालना, इट्स टेक्निकली क्वेश्चन फॉर बोथ कि प्री इवेंट कैसे यही चीज हैंडल की जाए कि इवेंट के दौरान ऐसी चीज ना हो जाए, और अगर इवेंट के दौरान ऐसी चीज हो जाती है तो क्या किया जाए? बेसिकली एज अ परफॉर्मर हर्ट होना नहीं चाहिए, बिकॉज द थिंग इज आप सीखने के लिए आ रहे हैं, यू आर कमिंग हियर टू लर्न टू गेन नॉलेज, एंड समवेयर इट इज लाइक यू हैव टू टेक इट इन अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब क्रिटिसिज्म आएगा ही, ऑब्वियसली हर चीज में क्रिटिसिज्म मिलता है, तो वो गुड पॉइंट ऑफ व्यू में लेना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो हमें रखना चाहिए एज एन आर्टिस्ट. तो आई फील वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैन आई स्पीक? ओके. एंड जहाँ तक आपने कहा कि जैसे परफॉर्मर्स को बुरा लग जाएगा कि हमें पहले क्यों नहीं बताया कि हम ये फलाना टॉपिक परफॉर्म नहीं कर सकते या वो, so taken into consideration that also we every time try to send mailers. We send mailers, not try. ओके, सो मेलर्स में हम लोग मेंशन करते हैं कि वीडियोस अगर है तो वो जाएंगे, बट साथ ही साथ में ये भी रहता है कि आप किसी तरह का अलग टाइप का कंटेंट आप ना करें. और अगर जैसे सिमरन ने कहा, मैं उससे बहुत सहमत हूँ, ओपन माइक है, यस इट इज फॉर टेस्टिंग योर कंटेंट, बट परफॉर्मर को अगर ओपन माइक में टेस्ट करने जा रहा है कंटेंट, तो वो उतनी हमें अपनी मैच्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी कि हम क्रिटिसिज्म लें अपने अंदर और फीडबैक वहीं पर लोगों से ले लें, ताकि ना ही किसी को बुरा भी लगे और फिर बाद में हम अपने वर्क पे इम्प्रोवाइजेशन भी कर सकते हैं. एंड फिर क्या पता अगर उनका लिखने का तरीका इतना अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपिक उनको फीडबैक ठीक नहीं मिले हैं, तो बाद में वो अलग टॉपिक पे लिख सकते हैं क्योंकि उनका तरीका अच्छा है, तो वो वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे. तो आई थिंक एज अ परफॉर्मर उन्हें बहुत ही पॉजिटिव वे में क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए, because criticism is the only stepping stone when you can go be a very good artist when you try and test your content in the open mic. तो एक वर्ड यूज किया, जेन्युइन कंटेंट जेन्युइनिटी, तो उसका मतलब क्या है? लाइक बीइंग अ राइटर, बीइंग अ परफॉर्मर, बीइंग अ पर्सन जो अभी नया लिख रहा है या नया ओपन माइक्स में आ रहा है, सो ही इज लिसनिंग टन्स ऑफ थिंग्स, वो अपने आसपास इतनी सारी चीजें दिख रहा है और उस पे परफॉर्म कर रहा है, उस पे कंटेंट बना रहा है, सो हाउ, और उसको आके मान लो कोई कह दे दैट योर कंटेंट वाजंट जेन्युइन इनफ, तो इसीलिए हम लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं और इसलिए वी आर नॉट टेकिंग इट इनटू कंसीडरेशन, तो व्हाट डू दैट मीन्स? वो कंटेंट जेन्युइनिटी का मतलब क्या है? Genuine content का दो एस्पेक्ट है. फर्स्ट इज अ प्लेगराइज्ड कंटेंट एंड द सेकंड इज व्हाट द कंटेंट एक्चुअली इज. फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे बताऊं, मैं पोयम लिख रही हूँ, लेट्स से ऑन अ सॉन्ग, तो उसमें अगर मैं किसी और के पोयम का रेफरेंस ले रही हूँ, उसी के एक दो लाइन उठा रही हूँ, उसमें अगर मैं चेंजेस कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज अ प्लेगराइज्ड कंटेंट. हम दोनों के पोयम का फ्लो सेम हो सकता है, थॉट प्रोसेस सेम हो सकता है, बस वर्डिंग सेम नहीं हो सकती है, या बहुत कम चांसेस होती है वर्डिंग सेम होने का, और वो पता चल जाता है इंसान को कि प्लेगरिज्म है या नहीं है. थॉट प्रोसेस सेम हो सकते हैं, एग्री, बट उसको लिखने का हर इंसान के पास अलग तरीका होता है जो बाहर दिख कर आता है. वेयर एज ऑन द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो वो डिपेंड करता है. अभी जैसे एक रिसेंट एग्जांपल था कि हम लोग ने देखा ओयो रूम्स पे बहुत डिस्कशन हो रहे थे, और द वे दे वर पुटिंग अप द कंटेंट, इट वाजंट प्रॉपर. मतलब एक तरफ हम इस कंट्री में या ऐसी जगह पे जहाँ पे वी आर फाइटिंग फॉर समथिंग, and suddenly some of the participants come up, or the spoken word platform come up with such a content जो उसका टोटल अपोजिट है, फाइट के टोटल अपोजिट है, तो वो बढ़ावा देने लायक हो गया उस चीज को. तो एज अ प्लेटफॉर्म, एज द पार्ट ऑफ द पोएट्री सर्किट, ये पर्सनली थिंक कि वो चीजें रोकनी चाहिए, बिकॉज आप एक को मैसेज दोगे, वो 10 को फॉरवर्ड होता है, वो आगे और 10 को फॉरवर्ड होता है, तो वो ज्यादा खतरनाक. सो इसी चीज पे आते हुए, जैसे वी नो कि रिसेंटली इस पे लाइक
बहुत ज्यादा बैकलैश भी हुआ था और काफी कंट्रोवर्सी भी इस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, बीइंग अराउंड ऑल द वीडियोस, ऑल द कंटेंट, ऑल द वीडियोस जिसपे ओयूरूम रिलेटेड और सेक्सुअली कंटेंट जो है काफी ज्यादा लाइक सेक्सुअली भी सेक्सुअली कंटेंट बुरा नहीं है, बट इन अ नेगेटिव वे पे उसको स्प्रेड करना बहुत ज्यादा बुरा है, हेटेड फैलाना और किसी को टारगेट करना वो काफी ज्यादा बुरा है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? लाइक अज्यूमिंगली यू आर एन ऑर्गेनाइजर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो मैं एज अ परफॉर्मर आया हूँ? क्योंकि ओपन माइक्स का मतलब तो ये है ना दैट द माइक इज अवेलेबल फॉर एवरीवन और वहां पे आके कोई कुछ भी बोल सकता है, अपने ओपिनियंस रख सकता है। सो उस टाइम पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन ये ध्यान दे कि हेट स्पीच ना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ हेट स्पीच टेक्निकली। किसी एक हम हमेशा कम्युनिटी हेट की ही हमेशा बात नहीं कर सकते। वी नीड टू नो कि कहीं ना कहीं जितने भी राइटर्स हैं वो अपने ही तरीके से इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर्स इन देयर ओन राइट। एंड ओयोरूम रिलेटेड कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि देयर वाजंट वन वीडियो फॉर इट, देयर वाज टन्स ऑफ वीडियोस फॉर इट फ्रॉम अ सेम प्लेटफॉर्म, बाय रिपीटेडली बाय द सेम सॉर्ट ऑफ राइटर्स, उन्हीं से बार बार उनके अदर वीडियोस में भी सिर्फ ओयोरूम एक वर्ड पे नहीं, बट हाँ उनके अदर वीडियोस में भी कंटेंट ऐसा था जिसपे आप जो कह सकते हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ हेट स्पीच। सो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? प्लेटफॉर्म की या राइटर की? कौन इस चीज का ध्यान है? क्योंकि अगर राइटर की, हाँ लेट्स गेट इनटू दिस फर्स्ट। मेरे हिसाब से इट इज 80-20 का रेशियो। 80% ऑर्गेनाइजर को ध्यान देना चाहिए और 20% परफॉर्मर को। एज अ परफॉर्मर अगर मैं जा रही हूँ किसी जगह परफॉर्म करने के लिए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर हमें पता है कि वी आर स्पीकिंग ऑन समथिंग विच इज ट्रेंडिंग और विच इज वेरी इन अ नेगेटिव वे जो आज लोग ले रहे हैं उस चीज को, तो एज अ परफॉर्मर मेरा एक प्राइमरी रोल होता है मैं बताऊँ कि भाई मैं इस चीज पे बात करने वाली हूँ, I'm gonna speak on this topic. Is it fine? These are the lines. This is the some of the lines of my performing work. So is it proper or not? So on a artist point of view ये बहुत करना और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। Whereas organizers में वो करना चाहिए कि परफॉर्म करते समय एक स्टेप होता है कि आप उसको वहीं पे रोके, और एक ऐसा भी हो सकता है कि परफॉर्म करने के बाद बताएं। दोनों में से कोई भी एक है। अब डिपेंड करता है, अगर उधर की जनता अगर वो कंटेंट सुन के एकदम शॉक में है तो यू नीड टू स्टॉप इट राइट नाउ बिकॉज द ऑडियंस हैज बीन डिस्टर्ब। बट वो जनता अगर कामली सुन रही है तो एज एन ऑर्गेनाइजर या as a team of it, you should be telling the person after that, after his performance कि भाई आपने गलत कहा है ये चीज ऐसी नहीं है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आप चेंज कीजिए या आपका क्या पर्सपेक्टिव था ये बताइए, तो हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। और रही बात वीडियोज अपलोड करने की, तो एज एन ऑर्गेनाइजर हमें हमारे पास वो लाइबिलिटी होती है कि हम वीडियो चेक करते हैं वापस एक बार कि वो सही कंटेंट है एंड सपोज का ध्यान नहीं था फॉर एग्जाम्पल, but as after during the editing process we have the liability to check the content and before uploading it. So if you're not checking the content and uploading it, then you're failing as an organizer somewhere I see. ठीक है। So being the host live event के दौरान पे I'll just throw in a tricky question. तो इमेजिन करो कि आई एम अ राइटर, एक न्यूबी राइटर हूँ, ठीक है, और मैंने एक ऐसा कंटेंट लिखा सीन जो इतना ओयोरूम रिलेटेड पूरा कंटेंट घूम रहा था विच वाज पार्ट ऑफ हेट स्पीच, काफी ज्यादा सेक्सुअली अब्यूजिंग कंटेंट था। सो वैसा कंटेंट मैंने लिखा, मैंने अपने 4 दोस्तों को सुनाया और उन 4 दोस्तों ने बोला कि अरे वाह भाई क्या मस्त लिखा है। मैंने वो कंटेंट मान लो इंस्टाग्राम पे डाल दिया, मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे 100 फॉलोअर्स हैं पूरे, मुझे 150 लाइक्स आ गए, जबकि मेरे बाकी कंटेंट में मुझे 10-15 लाइक्स आते थे। तो मुझे लगा अरे कंटेंट तो सही है, जाके परफॉर्म करना चाहिए। एंड आई एम कमिंग अप एक ओपन माइक में मैं जाता हूँ जहाँ पे मुझसे एडवांस में कंटेंट नहीं मांगा जाता है, या मांगा भी जाता है तो मान लो वो चलो नहीं, एडवांस में मुझसे कंटेंट नहीं मांगा जाता है। एक ओपन माइक है जो ट्रेडिशनल ओपन माइक है जहाँ पे ये चीज नहीं होती है जनरली। मैं वहां जाकर परफॉर्म करता हूँ और परफॉर्म करने के बाद आई गेट ह्यूज अपलॉड्स। बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब किसी भी रीजन की वजह से, द पीपल लव इट कंटेंट, या उनको कोई लाइन अच्छी लग गई या कुछ भी अच्छा लगा, मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा बोला, मुझे इस सोशल मीडिया पे अच्छा बोला, अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा बोला। बट नाउ यू क्लिक्ड इट दैट दिस इज समथिंग दैट इज सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट, और तुम्हें पता है कि लोग जो हैं वहां पे बैठे बैठे उसके लिए तालियां भी बजा चुके हैं। सो व्हाट नेक्स्ट?
ओके, तो जैसे अगर आपने कहा कि जो लाइक्स वाली है तो चलो वो तो हो ही जाती है, आप कंटेंट फैलाते हो, शेयरिंग वेयरिंग करते हो, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। बट इन अ लाइव इवेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आप बात करें तो जहां तक अगर हमको पता है, अगर हम करेंट सिनेरियो में देखेंगे तो ये बहुत सही बात है कि इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं बेसिकली 70 to 80% इनको ज्यादा शेयर मिलता है, कमेंट्स मिलता है, लाइक मिलता है, क्योंकि आजकल जनरली लोग जो है उस तरफ ज्यादा अपने आप को शायद फोकस कर रहे हैं, या ज्यादा जिसको बोलते हैं ना, आपको एक शॉर्टकट मिल जाता है चीजें समझने का। तो जनरली वही सारी चीजें चल रही है। लेकिन हाँ, अगर लाइव इवेंट की बात करते हैं, बीइंग अ होस्ट, मुझे अगर बोला जाएगा कि अगर मेरे सामने इस टाइप का कंटेंट है एंड अब मुझे डिलीवा हो गया है कि लोग भी तालियां बजा रहे हैं, और अब मैं क्या करूं, तो और उसको भी बोलना है कि आप ये मत करिए। तो being a responsible host and organizing a traditional open mic, so as a host, I surely will tell him after the content has been performed. Once the content has been performed, I'll tell him separately कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, हमारे यहाँ पे ये टाइप के चीजें अलाउड नहीं है। भले ठीक है, अगर कुछ कुछ टाइम होता है जब हम पहले नहीं बोल पाते हैं कि हम ये, आपने जैसे कहा कि ओपन माइक हम कंटेंट नहीं मांगते हैं पहले, लेकिन हमारी भी एक मॉरल, परफॉर्मर की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें क्या जाके परफॉर्म करना है। तो बीइंग अ होस्ट, आई थिंक हमें बाद में सेपरेटली उन्हें बोलना चाहिए। एंड हमें अपनी ऑडियंस के तरह से अगर सोचे तो वहां पे भी हमें उन्हें कहना चाहिए ऑन अ वेरी बिग नोट कि इस तरह की चीजें प्रमोट ना करें, बट इन अ वेरी सटल टोन। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे ये क्या है, आप तालियां बजा रहे हो ऐसे कंटेंट पे, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उनको लगेगा क्या हम ऐसे ही आए हैं क्या यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम से दे वोंट इवन बी कमिंग टू योर इवेंट, राइट। तो उनको भी बहुत सटल वे में आपको करना आना चाहिए कि वो लोग रियलाइज करें कि ये कंटेंट ताली बजाने लायक उनके हिसाब से था, बट इसने कहीं ना कहीं किसी को हर्ट किया है, एंड कहीं ना कहीं पीपल अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 100 ऑडियंस आए हैं तो 100 में से 80 ने ताली बजाई, लेकिन 20 लोग अनकंफर्टेबल थे, और तालियों की आवाज ज्यादा थी क्योंकि 80 ने बजाई थी। ठीक है, तो फिर वैसे ही है कि हम बहुत सटल वे में उन्हें, ऑडियंस को भी बोलेंगे, लेकिन कंटेंट खत्म होने के बाद जैसे वो कर देते हैं कंटेंट खत्म, तो उनको भी बोलेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे ध्यान में रखे। एंड आई थिंक थोड़ा सा कभी कभी हार्श टर्म पे भी वर्क करना पड़ता है। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, तो कभी कभी आपको थोड़ा हार्श भी बनना पड़ता है कि अगर सेम चीज बार बार हो रही है, देन यू नीड टू स्टॉप इन बिटवीन। कि हमने लास्ट टाइम भी बोला था, या हमने लास्ट टू लास्ट टाइम भी बोला था, बट दिस इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंगली, तो तब आप बीच में स्टॉप करें। So that's a very interesting response, how to handle the things in a live event. So एक situation, there is another situation technically, इस situation बोलो या easy way out बोलो. So being an organizer, क्यों ना मैं सिर्फ एक disclaimer डाल दूं कि the views whatever have been portrayed in the video or in the performance, अगर मुझे पता है कि इस पे views आ जाएंगे, मान लो मैंने live audience में देखा लोगों ने तालियां भी बजा दी, और मैंने अज्यूमिंगली एक ऐसा पर्सन मेरे पास आके परफॉर्म करता है जिसकी मैंने सोशल मीडिया पे सेम पोएट्री देखी थी और वहां पे काफी अच्छे व्यूज थे। सो व्हाई वुड आई, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूं, लाइक व्हाई वुड आई वांट टू हैम्पर माय ओन चैनल, और मुझे पता है ये कंटेंट ऐसा है जिस पे लोग तालियां बजा देंगे, चलो तो क्यों ना मैं डिस्क्लेमर डाल दूं और वहां लिख दूं दैट द व्यूज रिप्रेजेंटेड आर ऑफ द राइटर्स, वी एज अ स्पोकन वर्ड प्लेटफॉर्म डू नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑफ दिस थॉट्स, और वीडियो अपलोड करूं और मेरे पास 100K 200K व्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब से मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों खराब करूंगा। पहली चीज ये होती है कि यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो ना। तुम अपने, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं खुद एक लड़की हूँ, एंड अगर ये चीज कर दूं, कल को जाके कुछ अगर मेरे साथ गलत हो जाता है तो आई कैन नॉट ब्लेम, क्योंकि चीजें मैंने स्प्रेड करना इनडायरेक्टली सही शुरू तो की है ना समवेयर, तो वो हम अपने ही सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं कहीं ना तो कहीं। तो अगर चीजें गलत है तो वो गलत है। इट इज नॉट लाइक कि अगर तुम सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के पीछे पड़े, देन यू आर अ वेरी पथेटिक प्लेटफॉर्म, आई वुड से। So that was very interesting response technically कि कैसे handle किया जाए audience को और performers को during the live event itself. But from organizer point of view, क्यों ना मैं disclaimer डाल के छोड़ दूं, like I will put up a disclaimer and say that all the views जो यहाँ पे all the views that has been said are the views by the writer itself, and
we do not take any responsibility of the views or we do not support it, we do not criticize it, जैसा भी होता है. जैसे जनरली हम मूवीज में डिस्क्लेमर देखते हैं और हर जगह डिस्क्लेमर्स देखते ही देखते हैं हर कंटेंट से रिलेटेड. तो क्यों ना मैं बस एक डिस्क्लेमर डाल के कह दूं कि ये जो भी बोला गया है ये राइटर की अपनी राय है और मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारूं. अगर मुझे पता है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, मुझे पता है 100K 200K व्यूज आ रहे हैं, सो व्हाई वोंट आई डू दैट. और एक इजी वे आउट है, स्टार्टिंग में एंड में डिस्क्लेमर डाल दो या पूरी वीडियो के दौरान नीचे एक स्लाइड चला दो डिस्क्लेमर की. सो दैट्स एन इजी वे आउट rather than interfering in between और मैं राइटर को बोलूं फिर लिसनर्स को समझाऊं. मतलब इतने एफर्ट्स क्यों? डिस्क्लेमर डाल देने से हमें वो पावर तो नहीं मिल जाती ना कि हम कुछ भी कंटेंट चला ले एंड उसको एग्री कर दें. एवरी कंपनी हैज सम सेट ऑफ रूल्स एंड मॉडल्स ऑन व्हिच दे वर्क एंड अकॉर्डिंग टू मी हमें ये चीज इंक्लूड करना हमारे सेट ऑफ रूल्स एंड मॉडल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अजीब सा कंटेंट जो भी कम्युनिटी को हर्ट करे, उनकी फीलिंग्स को मिसयूज करे या मिसबिहेव हो कंटेंट का या सेक्सुअली अब्यूज हो उस कंटेंट में, तो ऑब्वियसली वो एक ह्यूमैन पर्सपेक्टिव से बहुत गंदी चीज जो हम कर रहे हैं. तो आई गेस वो चीज एडअप हो जानी चाहिए कंपनी के मॉरल्स एंड एथिक्स. तो एक बीइंग एन ऑर्गेनाइजर जो एक फ्री ओपन माइक करवाता है, लाइक मैं ऑडियंस से अगर पैसे नहीं लेता हूँ, मैं परफॉर्मर से अगर पैसे नहीं लेता हूँ और मैं वेन्यू भी अपने आप कर रहा हूँ एंड आई एम कंडक्टिंग दैट फ्री ओपन माइक जिसमें मैं बड़े हो या छोटा ऑथर हो, न्यू ऑथर हो या फिर राइटर हो, सबको बराबर प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहा हूँ और सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ. तो मेंटोर भी मैं बनूं, उसके बाद फीडबैक भी मैं दूं और उसके बाद किसको कितना टाइम मिल रहा है, क्या स्टेज मिल रहा है, कंटेंट कैसा है, किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा, एडिटिंग देन फिल्ट्रेशन, ये सब भी मैं ही करूं. सो लाइक व्हाई बीइंग एक और वो चीज कि खुशहाली जो है दैट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म. टेक्निकली वो लोगों को फ्री अपॉर्चुनिटीज देता है. सो इतनी मेहनत खुशहाली के थ्रू इन्वेस्ट करना, इतना टाइम राइटर्स में इन्वेस्ट करना या परफॉर्मर्स में इन्वेस्ट करना, सेइंग दैट कि भाई एक तो हम चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, एक तो हम फी भी नहीं ले रहे हैं और फिर सिखाएं भी हम, एडिट भी हम करें, फिर फीडबैक्स भी हम दें और अपॉर्चुनिटी भी हमसे ही चाहिए. सो हाउ वुड दैट वर्क आउट देन? लाइक वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अगर पार्ट है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आउटकम क्या है फ्रॉम ऑर्गेनाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजर आके कह सकता है कि हम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म और इतना सब तो दे ही रहे हैं, अगर सारी ही चीजें हम सिखाते रहेंगे एंड दैट टू आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? हम जो है यूट्यूब पे व्यूज भी ना ले मतलब. तो इसका मतलब आप अपने मॉरल्स एंड एथिक्स को कुल्हाड़ी कुचल कर कुछ भी कर लोगे just to get those views and just to earn the money which you have organizing the event. आप आपका कोई भी कंटेंट पोस्ट कर दोगे एंड मॉरल्स एंड एथिक्स की धज्जियां उड़ा के थोड़ी आप चीजें ले सकते हो. दैट इज अ वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट. तो क्या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इतना ज्यादा इश्यूज अभी क्रिएट हो रहा है और एक प्लेटफॉर्म का नाम काफी ज्यादा उछला था और क्योंकि बहुत मल्टीपल वीडियोस थी, बार-बार थी शायद इसीलिए, पर और भी काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके इर्द-गिर्द का कंटेंट कहीं ना कहीं हेट स्पीच जैसा कंटेंट या फिर पोकिंग कंटेंट, प्रोवोकिंग कंटेंट अक्सर बनाते हैं. तो क्या शुड वी कंक्लूड इट कि प्लेटफॉर्म्स को सारा कंटेंट पहले ही ले लेना चाहिए एंड देन दे शुड गिव द राइटर्स कि आप ये नहीं बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो? शुड इट बी अ जनरल नॉर्म? क्योंकि फिर ट्रेडिशनल ओपन माइक वाला पॉइंट जो है कहीं ना कहीं चला जाएगा. सो हाउ शुड इट बी? जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी 80-20%. तो एक एज अ परफॉर्मर अगर मुझे पता है कि मैं एक फॉर एग्जांपल अगर मैं रेप फिल्म पोयम लिख रही और मेरा फर्ज बनता है कि वो एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं ऑर्गेनाइजर को एक बार जाके बताऊं कि मेरी पोइम क्या है, कैसी है एंड टेक द फीडबैक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर बिफोर परफॉर्म. ये एक एज एन आर्टिस्ट होता है. तो कंटेंट अगर तुम्हें पहले नहीं लेना है तो आर्टिस्ट हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम आउट एंड टेल कि भाई ये मेरा चीज है, मैंने ऐसा लिखा है, इज इट राइट और रॉन्ग, जस्ट गाइड मी आउट. So being a spoken platform yourself, तो कहीं do you face such situations लाइव इवेंट के दौरान पे being a host जहाँ पे
इंटरफेयर करना पड़ जाए या बाद में इन्फॉर्म करना पड़ जाए, या फिर से परफॉर्म करने से पहले किसी ने पूछा हो कि इज दिस कंटेंट लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। वो केस हुआ है कभी, या हर बार ऐसा ही होता है कि लोग आके परफॉर्म कर देते हैं और फिर उसके बाद बताना पड़ता है कि ये कीजिए या नहीं कीजिए? लाइक है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट कर, क्योंकि कोई चीज अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर उस चीज के बारे में आप इडियोमेंटी की बात भी कैसे करेंगे? सो डज दिस थिंग एग्जिस्ट? और कोई ऐसा केस स्टडी या कोई ऐसा एग्जांपल जिससे लाइक वी कैन पुट डाउन टू द लिसनर्स कि दिस इज समथिंग, ये एक जनरल केस स्टडी है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स? क्योंकि कई बार हो सकता है एक न्यूबी राइटर के लिए वो ना समझ पाए कि ये सेंसिटिव टॉपिक है कि नहीं है, और वो परफॉर्म कर दे जाके। सो एनीथिंग लाइक दैट? केस स्टडी नहीं है कि people have start में they have come and asked even for किसी को अगर कोई कॉमेडी गिग अगर बीच में डालनी है तो they have come up and asked कि भाई ऐसा ऐसा है, कॉमेडी for topics पे है, these are my lines which I feel, which I have a doubt on it, should I perform or not? तो लोगों के पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना सेंस है कि आ जाते हैं। कुछ होते हैं जो तुरंत ऑन स्टेज चले जाते हैं, बट ऑफ स्टेज जब हम उनको बताते हैं कि भाई ये चीज गलत है, तो दे टेक इट इन अ गुड मैनर, एंड वी हैव सीन दैट कि वो एक अलग वे में अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए वापस सामने आते हैं उस चीज के ऊपर। And being a host and हम लोग जो organizers, being the team of खुशहाली, we are very fortunate कि अब तक जितने भी hardly, मुझे ऐसा लगता है सिमरन hardly 1 या 2 बार हुआ रहेगा जब कोई sensitive topic ऊपर आ रही, कि hardly मुझे इतना याद भी नहीं है, क्योंकि जनरली लोग जो हैं, जैसे सिमरन ने कहा कि वो लोग पूछ लेते हैं पहले कि मेरा ये टॉपिक है, उनको क्योंकि समझ में है, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रियलाइजेशन है कि सेंसिटिव टॉपिक है, तो वो आके पूछ रहे थे करें क्या इस पे परफॉर्म। अगर हम परमिशन देते हैं वो तो ही परफॉर्म करते हैं, और अगर हम परमिशन नहीं देते तो वो बुरा नहीं मानते, दे परफॉर्म समथिंग एल्स। एंड यू वर अर्लियर टॉकिंग अबाउट गाइडेंस, कि गाइडेंस का था, तो देयर आर 2 to 3 आर्टिस्ट जो बहुत स्क्रैच से आए थे, एकदम मतलब वो लोग एज भी काफी कम है उनकी, तो उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हुए सुना था तो वो बहुत मतलब समझ में आ जाता है ना, एक न्यूबी रहता है उनका राइटिंग एंड एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट का राइटिंग। लेकिन जैसे ही 8 से 10 ओपन माइक खुशहाली के वो लोग आने लगे, the level of improvisation that they have done in their content and in the recitation, वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, एंड उसके बदले उन्हें इतनी तालियां मिली है। एंड मुझे एक्चुअली तालियों का छोड़िए, एज अ होस्ट एंड एज एन ऑर्गेनाइजर, मी एंड सिमरन वी फील सो प्राउड। उस टाइम लिटरली जिसको बोलते हैं ना, आपकी आंखों में एक शाइन आ जाता है। So we felt somewhere कि being a traditional open mic platform, we have fulfilled the motive of ours, and we are doing good with artists, because आजकल बहुत artist exploitation होता है, and we are not doing that. Apart from that, we are helping people out, and they are being happy. So happiness, I think, is the key for everything. So the recent controversy that revolved around all those tons of videos, और technically एक platform था जो सबसे ज़्यादा target हुआ, and the platform took down the videos, और उसके बाद owner of the platform released, so the owner of the platform released that message stating that we have taken down all the videos, and being the owner, it is my responsibility to filter the content, and I should have done it, but I haven't done it, so I apologize, and I have taken down all the content. So now, what's your take on that? कि is it fair enough कि ठीक है, कंटेंट चला गया था, उन्होंने पहले फिल्टर नहीं किया, लोगों ने सवाल किया, तो अब ओनर सामने आके ये कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी गलती थी, वो अपनी गलती मानते हैं और वीडियोस को हटा देते हैं। So is it over there, या फिर like कि the issue is done and dusted, ये दोबारा नहीं होगा की गारंटी आ जाती है because of an apology? और so what the situation is? What's your take on that about this? हम इस जनरेशन में रहते हैं जिसको इंटरनेट रूट है. So once the content goes on the internet, even if you take down from your channel, the content has already spread out. लोगों ने उसको सेव कर रखा है. Now, obviously there is an option to download YouTube videos also. अगर आप take down भी करते हो, not just save in the YouTube, but externally भी तुम download कर सकते हो उसको.
ऑलरेडी वीडियोस डाउनलोड हो चुकी होती है एंड सेल्फ रिकॉर्ड है, लोग उसका क्लिप बना के अपने सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते होते हैं। तो एक बार अगर वीडियो चली जाती है और उसके बाद ऐसा कुछ होता है एंड देन कम अप विद अ apology, so I think it is not a fair thing. Yeah, apology except I'm not sure, but I won't consider, I won't accept according to my personal view होगा वो, because वो content already चला चुका है, so it's already been delivered across a lot of platforms. एंड वो एक बार करे तो ठीक है ना, बार बार मतलब आप एक ही चीज कर रहे हो तो उतना आपको सेंस होना चाहिए, मतलब यू आर डूइंग इट डेलिबरेटली। तो जब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, जब बहुत आपको लग रहा है कि बस अब मैं नहीं रह सकता या मेरा बहुत बदनामी हो जाएगा, अपोजिशन मतलब अपोज इतना कर रहे हैं लोग, तो उस कारण उन्होंने निकाला है। उनका मेन इंटेंशन निकालना नहीं होता जनरली। अगर आप उन्होंने एक कंटेंट समझे, बहुत अच्छे कंटेंट से एक कंटेंट उन्होंने ऐसा डाल दिया, लोगों ने अपोज किया, उन्होंने निकाल दिया, ठीक है, इट इज अ मिस्टेक, सबसे मिस्टेक होती है। बट आप बार बार इतने सारे वीडियोस निकाल रहे हो, मतलब आपने वो तो डेलिबरेटली किया होगा, तो वो भी एक माइंडसेट होता है आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट उस केस में है कि वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म भी परफॉर्मिंग सच काइंड ऑफ पीसेस। तो उसके आगे अब हम क्या करें, मतलब एक जो मेन पिलर है उस प्लेटफॉर्म का, अगर वो ही इन सब चीजों में बिलीव करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं लेगा, बहुत क्वेश्चन मार्क आ जाता है उससे। और फिर आके अपोलोजाइज करना कि भाई आपने गलत की, तो पहले तो ये चीज है कि आपका वीडियो आज भी इंटरनेट पे है, वो सब देख रहा है, और उसके बाद आप सिर्फ अपोलॉजी डाल देते हो, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब वो वैसी होगी ना, मैं कुछ हरकतें कर दूं, मैं आके छेड़ के चली जाऊं एंड देन उसके बाद मैं अपोलॉजी लिख दूं कि भाई हाँ मैंने छेड़ दिया था, मैं उस टाइम पे उस मूड में थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, दोबारा नहीं होगा। It doesn't make any sense. Cool. So, like, obviously, we are no one to lay down the rules, regulations, or morals. सबका अपना अपना होता है. But just talking about एक spoken word platform itself, let's just talk कि कुछ basics responsibilities क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती हैं और क्या हैं जो एक spoken word platform को follow करनी चाहिए. So first, I suppose कि like मेरा जो अभी तक जो मैंने समझा है, उसमें पहली चीज ये है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर्स देने जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सा ऐसा कंटेंट होता है जो जैसे किसी भी कंटेंट से कोई भी ऑफेंड हो सकता है। देखो ये वाली चीज तो आप कभी भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, पर क्योंकि आप लेफ्ट विंग राइट विंग के चीज है कि सो आई वाज सेइंग कि लेफ्ट विंग हाँ मुझे मैं ये कहना चाहती थी कि सारे कंटेंट पे हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते, या बहुत सारे कंटेंट है जो मुझे पसंद आ रहे हैं उन बाकी को नहीं पसंद आ सकते, बट एक जनरल कैटेगरी होती है कंटेंट फिल्टरेशन की, उस कैटेगरी को हमें क्रिएट करना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें चेक करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सभी कंटेंट फिल्टर करो या सभी कंटेंट ये करो, बहुत सारे व्यूज होते हैं, बहुत अलग अलग चीजें होती है, बट एक कैटेगरी में अगर वो चीज आती है, अगर वो सेंसिटिव टॉपिक है एंड वो सोसाइटी अगर सुन रही है, बाहर के लोग सुन रहे हैं एंड यू नो दैट इज अ वेरी रॉन्ग डिस्कशन गोइंग ऑन, तो ऑब्वियसली उसको फिल्टर आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। So let's just try to jot down few basic responsibilities, like as the name of the episode is spoken word platforms responsibility check. So what is that checklist जिस पे कोई भी स्पोकन वर्ड प्लेटफॉर्म इन फ्यूचर चेक कर सकता है, और द लिसनर्स कैन चेक आउट कि ऑलरेडी दिस इज अ स्पोकन वर्ड प्लेटफॉर्म जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, सो क्या आर दे अबाइडिंग द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एटलीस्ट। ऑब्वियसली कि कोई भी आके ऐसे बोल नहीं सकता कि ये 15 होंगी तो ही आप सही हो वरना सही नहीं हो, बट दे मस्ट बी फ्यू बेसिक मोरल्स जो फॉलो करने कहीं ना कहीं जरूरी है। सो वन बाय वन व्हाट वुड बी दैट चेकलिस्ट टेक्निकली? सबसे पहला तो जो मुझे हमेशा खलता है हर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देखने के बाद, तो सबसे पहला मेरा ये रूल है, मे बी उसको आप सेकेंडरी बोल सकते हो या कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्राइमरी रहना चाहिए कि जैसे फिल्टरेशन की अगर हम बात करें, दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो फिल्टरेशन में कंटेंट फिल्टरेशन जब हम करते हैं तो हमें कंटेंट फिल्टरेशन अनबायस्ड होके करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इफ यू गेट गुड आर्टिस्ट एट योर प्लेस, जो अभी काफी लाइमलाइट में रहते हैं जो आर्टिस्ट हैं,
तो हम लोग सोचते ओ ये आर्टिस्ट तो अच्छा है, इसके व्यूज लाइक कमेंट्स बहुत आ जाएंगे, तो चलो ये अगर वो वैसे टाइप का भी थोड़ा कंटेंट डाल देगा तो लोग क्या एक्सेप्ट कर लेंगे कि नो दिस इज द हार्श रियलिटी। बट नहीं, हमको अनबायस्ड होके कंटेंट फिल्टरेशन करना है, भले ही वो नया आर्टिस्ट हो या वो नोन आर्टिस्ट हो। तो कंटेंट फिल्टरेशन इस बेसिस पे करनी चाहिए। एंड सेकेंड, जैसे सिमरन ने कहा, आई अग्री टू हर, कि जैसे आपने कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को हर्ट कर जाती है, जो नॉर्मल टॉपिक्स भी हैं। तो ये कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी कर लो लाइफ में, मतलब आप पिक्चर बना लो, आप बुक लिख लो, आप कंटेंट बना लो, हमेशा दो कैटेगरीज रहती ही हैं, एक जो जिनको पसंद आएंगी और दूसरी जिनको पसंद नहीं आएंगी। लेकिन यस, वी हैव सर्टेन जनरल कैटेगरीज जो सबको नहीं पसंद आती है जनरली, मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्राउड। कुछ परसेंट रहते हैं जिनको वही सारी चीजें पसंद आती हैं, बट मेजोरिटी क्राउड जिनको है वो नहीं पसंद आती। तो सेकेंड चीज ये है कि आप एक जनरल कैटेगरी बनाओ कि किस चीज को है जो आपको परफॉर्म नहीं करना है या हर्ट नहीं करना है। तो मेरे एंड से ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू टॉक अबाउट फिल्टरेशन। अब कॉन्टेस्ट इन दिस एक और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट ऐसा है, जैसे हम बोलते हैं कि अनामिका ने अभी जैसे बताया है कि एक लाइमलाइट वाला चीज आ जाता है कि ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है और ये आर्ट बहुत अच्छा है। देयर हैव बीन पॉइंट्स इन माय लाइफ आल्सो व्हेन आई हैव गॉन टू लिसन टू समवन एल्स, कोई और प्लेटफॉर्म पे मैं गई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनफ, वो लाइमलाइट वाले आर्टिस्ट से ज्यादा बेटर कंटेंट एंड बेटर रिसाइटेशन वाज द पर्सन हु वाजंट इन द लाइमलाइट। तो समवेयर आई फील कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो पर्सन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो हम लोग देंगे, बट अगर उस बंदे का कंटेंट अच्छा है तो हमें वो भी ट्राई करना चाहिए कि उसको आगे ले जाए। आर्टिस्ट सपोर्टिंग अदर आर्टिस्ट, ये चीज इज वेरी मच मिसिंग इन दिस स्पोकन वर्ड वाला प्लेटफॉर्म, whereas if you and look out for painters or other any other artistic world or artistic field, people support each other। लोग हर एक दूसरे को शेयर कर, कमेंट होता है, बताते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, ये वाहवाही भी देते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, ये किया है, वो किया, बहुत सारी चीजें होती है। पर यहाँ पे मैंने एक चीज ये बहुत नोटिस की है कि यहाँ पे ये चीजें नहीं होती। मतलब लाइव सेक्शन में बता देंगे कि भाई बहुत है, बहुत अच्छा है, बट जब कोई वीडियो डालता है ना तो वो शेयर नहीं होता, ना वहाँ पे लाइक आती है जल्दी, ना वहाँ पे कमेंट आता है। तो यू शुड बी सपोर्टिंग अदर एज वेल। और मोस्टली हम उनको करते हैं जो इधर लाइमलाइट में है या अपने फ्रेंड सर्कल में, बाकी हम छोड़ देते हैं। तो दैट इज समथिंग। अगर आपको जेन्युइनली वो कंटेंट पसंद है, दो दैट पर्सन इज नॉट अ लाइमलाइट पर्सन, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। आप अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो आएगा कैसे, उसका राइटिंग स्किल्स आएंगे कैसे? So that is what I feel. So as far as my understanding, the another responsibility जो मुझे समझ आ रही है that the spoken word platform should inherit is providing with proper feedback and mentorship, not to a very exclusive level कि एक को जाके एक को constantly करें, but at least while the event is going on, चाहे paid events हो या free events हो, at least while the event is going on, it would be better to discuss some of the feedbacks, या फिर at least post event पे आप half hour session रख सकते हो जहाँ पे common discussions हो सकती है, और be it in any way, आप जाके खुद पर्सनली सबसे बात कर सकते हो, क्योंकि जनरली लोग तुरंत एग्जिट लेते भी नहीं है, पीपल स्टे, पीपल टॉक, वो चीजें होती हैं, एंड वंस यू क्रिएट दैट कल्चर तो लोगों को अपने आप पता लग जाता है कि यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा हाफ आवर का डिस्कशन सेशन हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है, इट इज फॉर द फीडबैक, सो लेट अस आल्सो गेट अप एंड, और अगर आप पहले ही कर लो कि ठीक है यार, these are the 5 performers who are very regular with us, these are the 5 performers who are very known in the poetry circuit, and they are also coming in our open mics very regularly, so you can just go to them and say कि there's a small request that we want to meet you, कि जो भी अगर नए परफॉर्मर्स आ रहे हैं जो हम जनरली अनाउंस भी कर देते हैं, सो अगर आप आफ्टर द इवेंट उनके कंटेंट पे 5-5 मिनट का फीडबैक अगर उन लोगों को जाके दे दोगे और हमारे साथ खड़े होके दे दो, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो मे बी बीइंग अ प्लेटफॉर्म, हमारे पास अगर वो रीच है, so we should use that reach to provide वो थोड़ा बहुत feedback, जिसकी वजह से जो mentorship है वो process easy हो सके थोड़ा सा, at least the guy will feel कि क्या सही क्या गलत, because हम बोलेंगे सही गलत पे शायद सुने ना सुने, but a person who has been regularly around in a poetry circuit, अगर वो आके एक feedback देता है, so probably that feedback will be more respected and will go on a long run. So that's
on another Exactly. I think responsibility. last year we had done once, right? In one of the episodes we have done it, and to be very fortunate enough, जो हमारे audience रहते हैं या परफॉर्मर्स रहते हैं वो अपफ्रंटली ही इतने एक्साइटेड और जज्बाती रहते हैं कि वो खुद ही फीडबैक दे देते हैं जाके, अगर अच्छा है और Actually, अगर as an मतलब जो भी उन्हें एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें ये भी एक नो मोटिव याद रखिए या हमारी चेकलिस्ट में जरूर होना चाहिए कि हम वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें. हम ऐसा Yeah. एनवायरनमेंट ना क्रिएट करें कि बाइल्ड हो जाए ये इसको वो. फिर हम ऑर्गेनाइजर है और हम सिर्फ लाइमलाइट वाले लोगों के साथ ही बैठते हैं, उनके साथ ही बात करें, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग रॉन्ग. और जो नए आए हैं उनको हम लोग बोलते कि नहीं आप रुक जाइए, आप ये नेक्स्ट कीजिए, इज आप वेरी वो इम्पोर्टेंट. कीजिए. या Yeah, so we should have an unbiased environment so that the people they feel that they are there at their home and they are speaking their heart out. So that is also one more important, I think. Another thing, I guess, अगर हम लोग being a platform, if my content is going online, माना वो content writers का है, but I do check it, I do edit it, मैं इतना ज़्यादा अगर उसके इर्द गिर्द हूँ, so obviously अगर कोई political view है, then I can obviously put down a disclaimer कि जो है this is a political view and this is the personal political view. Maybe that political view is for a left wing and I'm not a left wing. Obviously मैं एक channel होने के तौर पे left wing और right wing तो डिसाइड नहीं करना चाहता अपना, एंड दैट वुड मेक नो सेंस. सो उस टाइम पे डिस्क्लेमर शायद समझ आए, या फिर अगर मान लीजिए जैसे कुछ रेगुलेशंस भी हैं, लाइक इफ सम अगर मैं मान लो मैं मधुशाला ही जाके रिसाइट कर देता हूँ, सो टेक्निकली इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल. सो वो डिस्क्लेमर्स कहीं ना कहीं समझ आते हैं, व्हिच आर अ पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस दैट कम अराउंड. बट अगर हेट स्पीच या फिर प्रोवोकिंग या फिर सेक्सुअली अब्यूजिंग कंटेंट अगर आता है, सो आई शुड नॉट हाइड बिहाइंड द शील्ड ऑफ डिस्क्लेमर जस्ट बिकॉज क्लिकबेट के तौर पे. सो आई गेस दिस इज वन अनदर रिस्पांसिबिलिटी कि कोई भी कंटेंट को चाहे सोशल मीडिया पे किसी पे भी, चाहे एज अ पोस्ट, चाहे एज अ वीडियो, चाहे एज अ टीजर, चाहे एज अ आईजीटीवी या फिर यूट्यूब वीडियो, अगर मैं डाल रहा हूं, देन आई शुड नॉट hide behind the shield of a disclaimer. Exactly. Yeah. So any other responsibility that you feel should be there in the checklist? as of now तो I think these are the basic morals. बाकी तो अपने हिसाब से लोग tweak करते रहते हैं, but these are the general rules. I mean not rules exactly, rules बहुत foundation type हो जाता है, but इस moral और ethics पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, and unbiased रहना, that is the most important thing. क्योंकि when I'm talking about खुशहाली, because obviously we'll be talking about खुशहाली because we organize that. तो जैसे सिमरन ने कहा कि हम लोग से लोग कनेक्ट करते हैं. अब हम लोग से लोग इसलिए नहीं कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को पर्सनली जानते हैं या बहुत पहले से जानते हैं या हमारे दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. वी क्रिएट सच टाइप ऑफ फ्रेंडली एनवायरनमेंट. जब हम किसी परफॉर्मर को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे अगर रजिस्ट्रेशन आते हैं, तो हम उनसे 1-to-1 बात करते हैं. ओ आप क्यों नहीं आए, अगर इफ फॉर एग्जाम्पल कभी नहीं आ पाते हैं कोई रीजन के इससे, फिर जब वो आते हैं तो हम लोग खुद जाके उन्हें ग्रीट करते हैं, अकेले, मतलब जाके एक एक करके उन्हें ग्रीट करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. भले ही वो ज्यादा कोई इतना सोचता नहीं है, लेकिन जब उनको मिलता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तब उन्हें रियलाइज होता है कि ओ ये थोड़ा स्पेशल थिंग था जो मुझे अदर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिला. तो ये बहुत सारी छोटी मोटी इतनी बित्ती चीजें हैं जो हम एज ह्यूमन बीइंग, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजर्स को पार्ट रखे, एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम उनको ट्रीट करेंगे कि हाँ ये भी एक परफॉर्मर है, आर्टिस्ट है हमारी तरह, तब जाके आई थिंक कनेक्ट बनेगा. जब कनेक्ट बनेगा, लोग आपसे ज्यादा फ्री होंगे, तब आपसे शेयर करेंगे कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है, क्या नहीं. तो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड. तो आपको बेसिकली एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाना होता है, अनबायस्ड ऑफ एनीथिंग. That's quite very well said. So I suppose we jot down all the responsibilities in this checklist. So just to conclude, let me just read it out कि generally क्या responsibilities होनी चाहिए of a spoken word platform that they should really understand and they should really adhere. So first one would be the filtration of the content, pre-hand या फिर दौरान या फिर बाद में, in different manner they should always filter the content. Second would be कि प्रोवोकिंग कंटेंट और हीटेड स्पीच से रिलेटेड रेगुलेशंस वो टाइम टू टाइम बताते रहें.
इवेंट होने से पहले बताएं तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा. So that would be one of the things. The third thing would be artist supporting artist को जितना ज्यादा प्रमोट करे उतना ज्यादा बेटर होगा. And then the fourth thing जो कि I guess third का ही थोड़ा सा सेकेंडरी पार्ट आ जाएगा, and that is being feedbacks. तो feedbacks का माहौल जितने ज्यादा बनाए अपने इवेंट के दौरान उतना ज्यादा बेटर है. The fifth thing would be creating a non-biased environment for all sort of artists, for all type of artists, for all genre of artists. हर कोई किसी भी कैटेगरी में होता हो, let us make a non-biased environment. And the last point would be to take the responsibility of the content that they are putting up in front of the audiences by their social media or by the different platforms without using the disclaimers or without hiding behind the shield of the disclaimers. Filter करो अच्छे को, अगर वही all the points I guess are interrelated to each other somewhere. So that is one of the things जो हम conclude कर सकते हैं. So before we exit, last few words from both of you, from our panelists. Both of you. Okay. Last यही बोलना है कि अगर आप लोग ने ये सुना है तो and you relate to it and you think कि ये होना चाहिए and this is good for everyone and good for artists. So yes, do share it with the people you know and आपको ऐसा लगता है जिनको ये करने की जरूरत है. So do share it with them and with everyone. Do like, share and hit the bell icon and you can also give us feedback. So feedbacks are always welcome. मुझे तो यही कह रहा है. बाकी be happy and stay safe. मेरा तो मानना ये है कि अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग एंड मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इट, हमें आवाज भी उठानी चाहिए इस गलत चीजों के लिए. सो इवन इफ यू आर अलोन रेजिंग योर वॉइस एंड यू नो योरसेल्फ कि वो चीजें गलत है, तो कोई बात नहीं, आप आगे तो चलिए, आप लीड तो लीजिए, आपके साथ लोग और जुड़ेंगे. तो बट गलत चीजें ना करें. दैट इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड. So Yes. thank you very much to both of you आज हमारे साथ joining करने के लिए and Thank to you. discuss in detail about this thing. I guess this was very necessary to raise this topic and to discuss about it and to understand the responsibilities of a spoken word platform. So to all the viewers, yes, do like, share, comment, obviously. And if you have any sort of feedback or any sort of suggestion, our DMs are always open. You can easily find us on all the platforms by the name of Lepsus Creations. And our comment sections are always open. You can drop down your feedbacks over here. You can drop down all your queries over here. So we always welcome and we always support all the feedbacks, all the queries and all the suggestions. So thank you both of you for Thank joining you. us. And thank you to all the listeners for listening to this podcast. And we'll be back next week with episode 2 of our weekly podcast, Lepsus Creations Show. Thank you. Take care.